Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। और आज का बहुत ही पावन दिन है। आज जयानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। जो जयानंद प्रभु जो थे, प्रभु पाद बहुत ही प्रिय शिष्य थे। तो ऐसे पावन दिन पे सभी भक्तों का स्वागत है आज। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सखा गौर प्रभु कि आप बहुत अच्छी आपने इतना कीर्तन किया। तो शुरू करते हैं हम भागवतम का आज सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम देख रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 6 और श्लोका क्रमांक 13, 14, 15, 16। तो आज 4 ये मतलब एक साथ श्लोका है। पहले पढ़ता हूँ। तो अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयो ग्रजाः सुरासुर नरा नागाः खगा मृगा सरिस्पृहाः गन्धर्वाप्सरो यक्षा रक्षो भूतो गणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याधारश्चारणद्रुमाः अन्ये च विविधा जीव जलस्थल नभोक्षः ग्रहर्क्ष केतवस्तारा तदित स्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवश्च यत् तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: beginning from me, Brahma, down to you and Bhava, Shiva, all the great sages who were born before you, the demigods, the demons, the nagas, the human beings, the birds, the beasts, as well as the reptiles, etc., all phenomenal manifestation of the universes, namely the planets, stars, asteroids, luminaries, lightning, thunder, and the inhabitants of the different planetary system, namely the Gandharva, Apsaras, Yaksha, Rakshasa, Bhutagana, Uragas, Pashus, Pitas, Siddhas, Vidyadharas, Charana, and all other different varieties of living entities, including the birds, beasts, trees, and everything that be, are all covered by the universal form of the Lord at all times, namely past, present, and future, although he is transcendental to all of them, eternally existing in a form not exceeding 9 inches.
परपट छोटा है, मैं जस्ट पढ़ता हूँ फटाफट. The supreme personality of Godhead by his partial representation measuring not more than 9 inches as super soul expands by his potency in the shape of the universal form, which includes everything manifested in different varieties of organic and inorganic materials. The manifested varieties of the universes are therefore not different from the Lord, just as gold or golden ornaments of different shapes and forms are non-different from the original stock reserve of gold. In other words, the Lord is the supreme person who controls everything within the creation, and still he remains a supreme separate identity, distinct from all manifested material creation. In the Bhagavad Gita 9.45, he is therefore said to be Yogeshwara. Everything rests on the potency of Lord Sri Krishna, and still the Lord is different from the transcendental to all such identities. In the Vedic Purusha Sukta of the Rig mantra, this is also confirmed. This philosophy of simultaneous oneness and difference was propounded by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and it is known as Achintya Abheda Bheda Tattva. Brahma, Narad, and all others are simultaneously one with the Lord and different from the Supreme Lord. We are all one with Him, just as the gold ornaments are one in quality with the stock gold, but the individual gold ornament is never equal in quantity with the stock gold. The stock gold is never exhausted, even if there are innumerable ornaments emanating from the stock, because the stock is complete. If Purnam is deducted from the Purnam, still the Supreme Purnam remains the same Purnam. This fact is inconceivable to our present imperfect senses. Lord Chaitanya therefore defined his theory of philosophy as achintya, inconceivable, and as confirmed in the Bhagavad Gita as well as in Bhagavatam, Lord Chaitanya's theory of achintya abheda abheda tattva is perfect philosophy of the absolute truth. Kam karoti vachalam pangam langayate girim yat kripatam anande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. तो सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हुए चरणों में सादर प्रणाम. और आज का श्लोक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे. तो यहाँ पे आगे चलते हुए अभी जो है विराट रूप का बारे में विस्तार से चर्चा हो रही है, और ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि को बता रहे हैं. जैसे अभी हम जानते हैं सर्वरूप माता जी जैसे ही कीर्तन होने के बाद हमको किस तरह से बताती है कि ये जो पूरा श्रीमद् भागवतम है किस तरह से भगवान का स्वरूप है. उनके चरण कमल, उनकी नाभि, ऐसे करते करते जो 10वां कंद उनका जो कमल मुख, तो इस तरह से हमको पता चलता है कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम जो कहते हैं साक्षात भगवान का स्वरूप है. तो उसी तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं किस तरह से इस भौतिक जगत जो है किस तरह से भगवान का ही एक विराट रूप को किस तरह से हम लोग देख सकते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी नदियां है वो एक तरह से भगवान की है. उसी तरह से जो विराट रूप अगर हम देखेंगे तो ये जो पहाड़ है वो भगवान की भुजाएं, ये जो बड़े बड़े जो वृक्ष है वो किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान की एक तरह से हार्ड, मतलब जो हमारे बोन्स होते हैं उस तरह से. तो भौतिक जगत का जो ये जो विराट रूप जो है वो किस तरह से भगवान का ही एक तरह का मतलब ये भगवान का मतलब असली रूप जो है भगवान का जो सच्चिद आनंद जो दिव्य रूप है वो तो श्याम सुंदर का है. लेकिन ये भौतिक जगत क्योंकि भगवान से ही उत्पत्ति हुई है, भगवान का ही जो शक्ति है उससे उत्पत्ति हुई है, तो एक तरह से ये पूरा भौतिक जगत जो है ये भी एक भगवान का ही रूप है, विराट रूप. और भक्त का इसमें मतलब भक्त इस विराट रूप के प्रति आकर्षित नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान का ही एक विस्तार मतलब एक एक्सपेंशन है, मतलब भगवान से आ रहा है, तो किस तरह से हम भगवान को इस पूरे प्रकृति में भी भगवान का हम लोग किस तरह से दर्शन ले सकते हैं. और यही ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि को बता रहे थे. और जैसे भगवत गीता में भी अर्जुन जो है भगवान से विनंती करते हैं और फिर भगवान किस तरह से उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं, और हर जगह वो देखते हैं कि भगवान के कहीं मुख है, और हर मुख में किस तरह से जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो युद्ध करने आए थे वो किस तरह से भगवान के उस मुख में जा रहे. और ये सब भयानक दृश्य देखने के बाद अर्जुन जो है
भगवान से वापस विनती करते हैं कि मैं पूरी तरह से मतलब मेरा जो चित्त चेतना है भ्रमित हो रहा हूँ, तो आप कृपया मुझे वापस आपका जो जो श्याम सुंदर रूप है वही आप मुझे दिखाइए। तो भक्त को विराट रूप में कोई आकर्षण नहीं है, वो भगवान का जो सच्चिदानंद श्याम सुंदर जो रूप है उसी में उनको आकर्षण है। लेकिन एक तरह से ज्ञान के माध्यम से अगर देखा जाए, क्योंकि ज्ञान होना जरूरी है, तो ये विराट रूप भी एक तरह से भगवान का ही मतलब एक इस भौतिक जगत में एक को अगर पता चलना है कि भौतिक सृष्टि भी है, ये भी भगवान का ही रूप है। जैसे अगर भगवान का जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो अव्यक्त, मतलब तो अगर देखा जाए तो ब्रह्मेति परमात्मे भगवान इति शब्द थे, तो भगवान का जो रूप है उससे जो ब्रह्म ज्योति जो निकलती है, वो उससे जो भगवान पूरे अपने क्या कहते हैं भौतिक जगत में किस तरह से व्याप्त है, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति से। और उसी तरह भगवान हर एक कण कण में, हर एक जीव में, हर एक कण में किस तरह से परमात्मा रूप स्थित है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हमको इंफॉर्मेशन मिलता है कि भगवान का जो परमात्मा रूप है वो मैक्सिमम उनका साइज कितना है, 9 जो इंच है, 9 इंचेस से ज्यादा नहीं है। तो जैसे हम लोग जानते, वो हमको पता है कि हर एक जीव का जो अंगुष्ठ है, जो उंगली है, उस जीव के उंगली के साइज का जो है परमात्मा हृदय में स्थित रहते हैं। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि मैक्सिमम जो है भगवान का परमात्मा, एक्चुअली भगवान तो अनलिमिटेड है, लेकिन परमात्मा रूप का उनका जो मैक्सिमम है 9 इंचेस यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी। और इसीलिए भगवान जो है वो मतलब सबसे बड़े भी वही है और सबसे छोटे, मतलब जितना भी छोटा जो कण हम देख सकते उसमें भी भगवान उपस्थित है उस साइज में। और जितना भी बड़ा कोई है तो उस साइज में भी वहाँ तो अनोर अणिया महतो महीना, तो भगवान इज मतलब बिगर देन द बिगेस्ट एंड स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, मतलब भगवान मतलब ऐसे अनलिमिटेड है कि वो छोटे से भी छोटे बन सकते हैं हर एक अणु में जाने के लिए, और बड़े से भी बड़े। तो ये हमको यहाँ पे पता चलता है। और यहाँ पे मतलब हर चीज जो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उनके पूर्व मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं मुझसे शुरू होते हुए शिव जी सारे जो महान ऋषिगण है और तुम्हारे आने से पहले जितने भी जैसे असुर, नाग, दैत्य, मनुष्य, पक्षी, ये सारे जो हम लोग 84 लाख योनियों का जो वर्णन है शास्त्र में, ये सारे मिल के ये पेड़ पौधे, ये सारा जो प्रकृति, इतने सारे महासागर, नदियां, ये सारा मिल के जो एक जो भौतिक जगत बनता है, ये भी भगवान का एक तरह से जो यूनिवर्सल फॉर्म या विराट रूप है। तो ये हमको यहाँ पे पता चलता है। और ये सारा अगर हम देखा जाए तो हम जो है अंश और भगवान जो है हम लोग कभी लाइक मायावादी का क्या होता है, वो लोग कहते हैं कि भगवान जो पूर्ण है, तो उनके पूर्ण शरीर से ऐसे छोटे छोटे जब भी ब्रह्मांड बनते जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भगवान अपूर्ण होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक 100 में से अगर आप 10 निकालोगे तो कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा, और एक 10 निकालोगे तो 80 रह जाएगा। ऐसे करते करते अगर पूरा 10 करके आप निकालोगे तो जो 100 है वो 0 हो जाएगा। ये मायावादी का फिलॉसफी है। तो वो क्या कहते हैं कि भगवान जो पूर्ण थे, उनसे जब एक ब्रह्मांड भौतिक जगत का निर्माण होना शुरू होता है तो उनके शरीर से सारा मतलब उनका जो विस्तार होना शुरू होता है तो भगवान अपूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। तो हम भी जो है भगवान के अंश है। तो जब हम सब लोग वापस भगवान में मिल जाएंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। मतलब लॉर्ड अभी जो है अपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा ये सारा सृष्टि जो बनना शुरू हुआ था उसकी वजह से वो अपूर्ण हो रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर हम लोग ईशोपनिषद का पहला जो श्लोका पढ़ते हैं
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। अगर हम स्पिरिचुअल मैथ्स देखेंगे 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, तो भगवान जो है पूरी तरह से पूर्ण है। भले ही उनके ही द्वारा, उनके ही शक्ति द्वारा ये सारा ब्रह्मांड, ये जो भौतिक जगत या फिर जो कुछ भी निर्माण हो रहा है, जितने भी जो ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड जो कंप्लीट है, उसमें किसी तरह का कमियां नहीं है। हर चीज भगवान के द्वारा उसमें संचालित है। फिर भी क्योंकि भगवान के द्वारा ही हो रहा है और भगवान से ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि भगवान अपूर्ण होना शुरू है, मतलब भगवान से कुछ निकल रहा है इसका मतलब भगवान का कुछ घट रहा है, नहीं, इट इज कंप्लीट। अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से अगर इसका उदाहरण लें, जब एक पति पत्नी साथ में आते हैं और उनसे जब एक संतान की उत्पत्ति होती है, अभी ऐसा नहीं कि माँ के गर्भ से एक बच्चा निकला मानो 1 फीट का, तो ऐसा नहीं कि अभी माँ का वो बच्चा 1 फीट का है, इसलिए अभी माँ का जो कद है 1 फीट घटेगा या पिता का घटेगा। वो बच्चा बढ़ रहा है, इसका मतलब नहीं कि इस तरफ से पिता का कोई मतलब शरीर से कुछ नुकसान हो रहा है। एक एग्जाम्पल, एक सोचने के लिए, भले ही वो उनके ही शरीर से उत्पत्ति हुई है, लेकिन वो जो बच्चा है वो भी पूर्ण है, उसके भी पूरे नाक कान पूरी तरह से वो स्वस्थ है। बट ऐसा नहीं कि इसके पास एक कान नाक आ गया मतलब माता पिता का कुछ घटेगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। उसी तरह से ये तो भगवान है, तो भगवान के जो भी निकलता है वो पूर्ण है, और एट द सेम टाइम भगवान कभी अपूर्ण नहीं होते। हाँ, वो हमेशा पूर्ण रहते, भले ही कितना भी उनके द्वारा क्रिएशन क्यों ना हो, उनके द्वारा उनसे क्यों ना विस्तार हो। So this is actually a difference between एक जीव आत्मा और एक जड़ पदार्थ। जो जड़ पदार्थ है, मानो आपके पास एक फीट का लकड़ी है और आपने अगर उसको काट दिया 2 भागों में, और तो वो क्या होता है, तो जो 1 फीट का लकड़ी है वो आधा हो जाएगा, मतलब वो घट जाएगा। बट जब वही जो स्पिरिट है, एक लिविंग एंटिटी, एक जीव से जब कुछ उत्पत्ति होता है, तो एक कभी ये ऐसा नहीं होता, वो घटता नहीं है, इट रिमेन्स फुल, माता पिता का कुछ कम नहीं होता। और उसी तरह से भगवान जो है वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो जब भगवान से जब कुछ भी उत्पत्ति होती है, ये पूरा जो ब्रह्मांड, भौतिक जगत, अनंत कोटि जो हम ब्रह्मांड कहते हैं, ये सारे भगवान से ही आ रहे हैं, लेकिन स्टिल लॉर्ड रिमेन्स 100% कंप्लीट। अभी अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक जीवात्मा और एक भगवान। जैसा कि भगवान से भी उनके अलग अलग अवतार आते हैं, मतलब ये पूरे विष्णु तत्व, और हम जो है जीव तत्व है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जैसे यहाँ पे अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक गोल्ड माइन है, एक बहुत बड़ा गोल्ड का पहाड़ है, सोने का पहाड़ है। तो सोने से पहाड़ से आप छोटे छोटे सोना निकाल के आप गहने बना सकते हो, आप अंगूठी बना लो, हार बना लो, और उसका जो मात्रा है, वो अंगूठी का मात्रा और जो सोने का पहाड़ है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो जो सोने का पहाड़ का जो तुलना हम एक छोटे अंगूठी से नहीं कर सकते। उसी तरह से भगवान जो पूर्ण है, और भगवान के जितने भी क्या कहते हैं एक्सपेंशंस, विष्णु तत्व, दे आर ऑल्सो भगवान ही है। और हम जो अंश है, भले ही हम भी भगवान से आए हैं, लेकिन वी आर पार्ट एंड पार्सल। हम लोग कभी हमारे अंदर जो भी गुण भगवान का जो सच्चिदानंद गुण है, वो उसके अलावा क्वालिटेटिवली हम लोग एक है, लेकिन क्वांटिटेटिव में हम लोग एकदम क्या कहते हैं इनफाइनेटिसिमल, मतलब बहुत ही छोटे प्रमाण में। क्वालिटी में हम लोग भगवान जैसे है, हम लोग भी सच्चिदानंद है, लेकिन अगर क्वांटिटी देखेंगे तो भगवान का अनलिमिटेड है और हमारा एकदम लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड। तो जैसे अगर मान लो एक करोड़पति व्यक्ति है, ओके, बहुत ही बड़ा धनी, मतलब मान लो इंडिया का सबसे अमीर आदमी, अभी उसके द्वारा जो भी उत्पत्ति, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनको जो है वो जो करोड़पति जो आदमी है, उसका जो जितना भी धन है, उसका जो भी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उनका पूरा हक है।
I'm just trying to explain what is the difference between an expansion and part and parcel. Expansion यानी भगवान से जो विस्तारित अवतार, जो विष्णु तत्व ही है, and what is the difference between part and parcel, जो भगवान से ही आते हैं. तो जो करोड़पति आदमी है, उसके जितने भी बच्चे हैं, उसकी बीवी है, they have full right on the property. Actually वो है उस करोड़पति आदमी का ही, लेकिन क्योंकि बच्चे और ये जो बीवी उसके डायरेक्ट मतलब उनका रिलेशन है, so they also have the entire right on the property. अभी उसी घर में, क्योंकि वो बहुत बड़ा करोड़पति है, बहुत सारे लोग काम करते हैं. कोई किचन में है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई हाउसकीपिंग है. ये लोग भी उसी घर में रहते हैं. उनको भी कंट्रोल दिया गया. सिक्योरिटी गार्ड को कंट्रोल है कि कौन अंदर आए, कौन अंदर ना जाए. उसको पूरा राइट है, वो किसी को भी रोक सकता है. वो बताएगा आपका परिचय दो तभी अंदर भेजूंगा. किचन में जो बावर्ची है, जो हेड कुक है, उसको भी राइट है कि क्या बनाना है, क्या यूज करना है. तो इनको भी छोटा छोटा कंट्रोल है. अभी मान लो ये लोग सोचे, अरे हम लोग भी इसी घर में रहते हैं, हम लोगों को भी इतना कंट्रोल है, तो हमारा भी इस करोड़पति व्यक्ति के सारी चीज पे हक है. ऐसा हो सकता है क्या? अभी वो करोड़पति हो सकता है अपनी बेटी की शादी में 200 करोड़ खर्चा करके शादी करे, और मान लो सिक्योरिटी की भी बेटी है, वो सोचेगा अरे 200 करोड़ उसने अपनी बेटी के शादी में खर्चा किया. वो जाके बोल सकता है क्या, अभी मेरी बेटी की शादी है? मैक्सिमम वो क्या बोलेगा, चलो मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ आपकी बेटी की शादी के लिए. सिक्योरिटी नहीं बोल सकता, अरे नहीं आपने तो आपकी बेटी का शादी 200 करोड़ खर्चा किए, मेरी भी बेटी है, मैं भी आपके यहीं पे काम करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, मेरे लिए भी 200. जस्ट एक डिफरेंस बता रहा हूँ. तो उसकी बेटी, बिकॉज इट्स डायरेक्ट उनका ही रिलेशन है, शी कैन डिमांड ऑल्सो, और पिता उसके लिए खर्च भी करेगा उस तरह से. लेकिन हम जो पार्ट एंड पार्सल है, जो ये सारे और जो उनके वहां पे काम कर रहे हैं, दे डोंट हैव द राइट. उस तरह का राइट नहीं है. दे आर जस्ट जितना उनका क्षमता है उतना ही. तो उसी तरह से जो भगवान से जितने भी विष्णु तत्व है, दे आर एज गुड एज लॉर्ड. नॉट आई मीन दे आर लॉर्ड. वो आगे का जो भी उनका 64 क्वालिटीज, 60 क्वालिटीज वो अलग है, लेकिन दे आर विष्णु तत्व एंड दे आर टोटली पावरफुल. जैसे भगवान जो है ओरिजिनल कैंडल है, लेकिन उसी कैंडल से जो आगे जो हम लोग कैंडल लिट करते हैं, दे हैव द सेम पोटेंसी एंड दे आर सुप्रीम लॉर्ड ओनली. बट वी, इवन दो हम लोग भी भगवान से आते हैं, वी आर अंश, वी आर पार्ट एंड पार्सल. वी आर लाइक वो करोड़पति के पास हम लोग काम करने वाले लोग हैं. भले उसी घर में रहते हैं, उसी की सेवा कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट कंपेयर अवर सेल्फ टू, जैसे करोड़पति का जो फैमिली है, डायरेक्ट फैमिली, उसकी बीवी बच्चे, वी कैन नॉट कंपेयर आवर सेल्फ टू. तो उसी तरह से हम लोग नहीं बोल सकते अरे ये सारे विष्णु तत्व भगवान का ही एक्सपेंशन है, तो वो लोग अगर पूरा पावरफुल है तो हम भी तो भगवान से आए हैं, हम भी अंश है, तो हम लोग भी पावरफुल है. नहीं, दैट इज द डिफरेंस. वी आर जस्ट सर्वेंट. और हम सर्वेंट को, जैसे वो करोड़पति जो पगार देगा, उसी पगार में हमको चलाना है अपना जीवन. और बीच में अगर उसको हमारा काम पसंद आए तो हो सकता है वो बख्शिश दे, ये लो आपके लिए 1 लाख, ये लो आपके लिए 2 लाख. और हमको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है. सिक्योरिटी वाले को गेट पे कंट्रोल है, बावर्ची को उसको किचन में कंट्रोल है, लेकिन वो कभी भी वो करोड़पति आके किचन वाले को बोल सकता है मुझे आज ये खाना है, मुझे आज वो खाना है, ये बनाओ. वही सिक्योरिटी जाके किचन वाले को अगर बोलेगा अरे मुझे ये पसंद है, आज आप ये बनाओ, और डायरेक्ट किचन वाला उसको बोल सकता है हाँ तुम अपना काम करो, आज जो बनेगा साहब ने जो बनाया वही बनाएगा, और आप चाहे तो वो खाओ. तो सिक्योरिटी वाला सोच सकता है अरे जब साहब कुछ बोलता है ये तो एकदम सुन लेता है, मेरा क्यों नहीं सुनता. तो उसी तरह से लॉर्ड हैज फुल कंट्रोल. वी पार्ट एंड पार्सल, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारे अंदर है उससे हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. So this is actually how we can understand the difference between expansions and we part and parcels. भगवान के जितने भी विष्णु तत्व है, they are supreme lord itself, fully in full control. And we part and parcel, हम लोग कभी भी भगवान बन नहीं सकते. We will always remain servants. और जब ये हम लोग भूल जाते हैं, and when we try to become, हम लोग भगवान बनने का प्रयास जब करते हैं, दैट टाइम जैसे अगर करोड़पति का अगर उसको लगा कि ये सिक्योरिटी अभी बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक कर रहा है हर चीज में, ही इज ट्राइंग टू बी अ बॉस, मतलब पता चल जाता है ना बर्ताव से, तो वो क्या करेगा, उसको लात मार के बोलेगा तुम निकल जाओ, मैं किसी और को रखता हूँ. तो उसी तरह से हम लोगों ने भी वही किया. हम भगवान के जो धाम में थे, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली, लेकिन जब हम लोगों ने बॉस बनने का
कोशिश किया, भगवान ने लात तो नहीं मारा, लेकिन हम लोगों को कहा कि आपके लिए जो मैंने भौतिक जगत बनाया है, आप जैसे जीवों के लिए जो बॉस बनना चाहते हैं, आपको वहां पे मैं ट्रांसफर करता हूँ। तो उस तरह से हम लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। और इस तरह से इतने जितने भी 14 भुवन, 14 लोक है और अनेक ब्रह्मांड, ये सब मिला के जो 1/4 जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत केवल 1/4 है। ये भगवान का एक तरह से हम लोगों को एक पता चलता है कि हाउ वी कैन एक्चुअली सी द लॉर्ड। हर किसी को भगवान को देखना है। सो एट प्रिलिमिनरी स्टेज, बहुत ही नीचे स्तर पे अगर भगवान को किसी को दर्शन करना या भगवान का अनुभव करना है, सो दिस एंटायर नेचर इज वन वे ऑफ गेटिंग अ ग्लिम्स कि भगवान कितने महान है और भगवान का क्या अनलिमिटेड पावर कंट्रोल है। तो एक्चुअली नेचर के साथ रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हाल ही में 2 दिन के लिए वेंट टू अ विलेज विच इज टोटली फुल, हर जगह वन है। तो वहां पे प्रभु जी बता रहे थे कि हाउ दिस एंटायर जंगल इज क्लोजली कनेक्टेड विद अ जीवा। तो वो बता रहे थे कि आप कोई भी शास्त्र ले लो, महाभारत, चैतन्य चरितामृत, रामायण, इसमें भगवान किस तरह से वन में रामायण में भगवान वन में चले जाते हैं, वनवास। महाभारत में आप देखते हैं पांडवों को वन में भेजा जाता है। परीक्षित महाराज अभी कहा नैमिषारण्य के फॉरेस्ट में बैठ के ये अभी भागवतम चल रहा है। चैतन्य चरितामृत में देखिए हमारे चैतन्य महाप्रभु झारीखंड जब वो दौरा कर रहे हैं, तो झारीखंड के वन से गुजरते हैं। तो हाउ नेचर इज एक्चुअली वी हैव टू बी कनेक्टेड। अभी हम लोग सिटी में रहते हैं, सिटी ड्वेलर्स, और इतना हम लोग जड़ पदार्थ के साथ अपना कनेक्शन है वो कि हम लोग कभी भी मतलब वो एक वी बिकम टोटली अपना चेतना जो जड़ पदार्थ के साथ कनेक्ट कर करके वो इमोशंस, जो रियल इमोशंस है वो खो गया है। जैसे कि प्रभु बता रहे थे कि वहां पे जो रहते हैं वहां पे हर चीज नेचुरल है। तो वो जब देखते हैं एक पेड़ है जहाँ से उनको कपड़े धोने के लिए वो कुछ मिल जाता है, वो फल गिरता है, तो वो कपड़े धोने के लिए वो उनको काम आता है। और वो कह रहे थे कि हर दिन उनको जितना चाहिए वो कपड़ा धोना, उनको नहाने के लिए उतना उनको मिल जाता है। तो वो बता रहे थे जैसे वो उसको चुनते हैं, वो पेड़ को देखते हैं और उनको धन्यवाद करते पेड़ को कि आज आपने मुझे मेरा ये जो कपड़ा धोना, स्नान करने के लिए जितना मुझे जरूरत था आपने दे दिया। वो उनको धन्यवाद करते बिकॉज पेड़ भी इट इज अ लिविंग एंटिटी। तो वो बोले एक दिन वो शहर में आए और उनको किसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे जाना था। उन्होंने लिफ्ट पे चढ़े, लिफ्ट से बाहर निकले एंड ये उनका वो जो स्वभाव उस तरह से वो वेंट टू अगेन थैंक द लिफ्ट। तो बोला अरे मैं किसको धन्यवाद करूं, ये लिफ्ट तो जड़ पदार्थ है। जैसे वो हमेशा वो पेड़ को धन्यवाद करते हैं, उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। बट वो बोले सिटी में जब वो लिफ्ट ने उनको हेल्प किया 3rd फ्लोर में आराम से आने के लिए, तो बाहर निकल के जो धन्यवाद करने के अरे उनको फिर अचानक लगा कि मैं किसको धन्यवाद कर रहा हूँ, ये तो जड़ पदार्थ है। तो वही कह रहे थे कि वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विथ नेचर, क्योंकि अब जब नेचर में रहना शुरू करते हैं दैट टाइम ओनली जो अपना कॉन्शियसनेस है, बिकॉज वी वांट टू इंटरेक्ट ना। तो नेचर के साथ जब हम इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, सब पूरा जो प्रकृति है, दैट टाइम वी एक्चुअली अपना अंदर का जो डॉर्मेंट जो दैट वी आर स्पिरिट सोल एंड भगवान जो सुपर सोल, ये सारा जो कॉन्शियसनेस वो डेवलप होना शुरू होता है। इसलिए जो विलेज में लोग हैं सिंपल क्यों रहते हैं, बिकॉज दे लिव विथ नेचर, दे कैन सी गॉड। बोलते हैं ना भगवान का हाथ हर चीज में वो देख सकते हैं। लेकिन सिटी में क्या होता है, हम लोग इतने सोफिस्टिकेटेड है, हर चीज मशीन से कर रहे हैं, हर चीज मशीन कर रही है, तो हम लोगों का दिमाग भी उसी तरह हो जाता है कि वी फील एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। बस स्विच ऑन करो, आपका मसाला तैयार हो जाता है। आपको ठंडा पानी पीना है, आप फ्रिज ओपन करो, आपको ठंडा। लेकिन गांव में क्या है, हर चीज हो, जब नदी का पानी, भले ही अभी समर है, वहां पे इतना ठंड था, ऐसा लग रहा था कि नेचुरल एसी चल रहा है। सो पीपल एक्चुअली वो अनुभव करते हैं भगवान का। तो ये डिफरेंस होता है मतलब नेचर के साथ रहना। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सिटी में रह के वी डोंट बिकम लाइक मशीन्स। अपना सोच भी मशीन की जैसे होता है, अपना चेतना मशीन की तरह होता है। और यहीं पे नारद मुनि को ब्रह्मा जी बता रहे कि हर चीज जो आप देख रहे हो
ये भी एक तरह से भगवान का ही रूप है। ये जो हम लोग विराट रूप का बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, और किस तरह से भगवान के द्वारा हर चीज हमको जो चाहिए, ये भौतिक अपना जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या चलायमान रखने के लिए किस तरह से भगवान ने पूरा निर्माण किया है, ये सारा भगवान की शक्ति द्वारा आ रहा है। एंड इन अ वे इट इज नथिंग बट लॉर्ड्स यूनिवर्सल फॉर्म। तो ये जो है नारद मुनि को भगवान बता रहे हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी प्रकृति के साथ जितना हो सके कनेक्ट रहे। भले ही हम सिटी में रहते हैं, बट समवेयर और द अदर वी हैव टू कीप आवरसेल्फ कनेक्टेड टू द नेचर, नहीं तो हम भी मशीन की तरह बन जाएंगे। और जब व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द नेचर एंड वी सी एवरीथिंग, मतलब भगवान को हर चीज में देखते हैं, अब अपना जो कृष्णा भावना अमृत में जो प्रगति है वो और अच्छी तरह से हो जाएगी। वी विल बी थैंकफुल टू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग दैट वी आर गेटिंग, एंड दैट टाइम वी विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द रिसोर्सेज। आजकल रिसोर्स मतलब भगवान का हर जो रिसोर्स है किस तरह से वेस्ट हो रहा है। हमको लगता है ये मेरे भोग के लिए है, पानी हो, हवा हो, हर चीज हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। बट व्हेन वी एक्चुअली गेट कनेक्टेड टू द नेचर, और शास्त्र के द्वारा हम जब ये सब देखेंगे कि किस तरह भगवान हमारे हम लोगों के रिक्वायरमेंट के जैसे पिता है, जब घर में आता है हर चीज लेके आता है, चावल दाल हमारे, उसी तरह भगवान ये सारा हमको दे रहे हैं हम लोगों के क्या कहते हैं, पोषण के लिए। सो वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी कनेक्टेड, वी शुड बी थैंकफुल, एंड वी शुड बी कनेक्टेड ऑलवेज, एंड वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल। एंड हर चीज में भगवान का हमको आज का दुनिया इतना फास्ट है, उनको मतलब दे डोंट इवन हैव टाइम, मतलब ऊपर नीचे कहीं पे उनको बस वो घड़ी को देखते हैं, और कितना पैसा कमाना है देखते हैं, कहाँ पे क्या खरीदना देखते हैं, किस तरह से फायदा होना है यही देखते हैं। इसके अलावा दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। इसके वजह से वी आर बिकमिंग, इसीलिए इसी को अभी एक्चुअली देखा जाए तो व्हाट इज बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। अब हम जब भक्त हर चीज को भगवान के केंद्र से देखते हैं, केंद्र बिंदु से, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, वी आर एक्चुअली नॉट लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, वी आर एक्चुअली लिविंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल? व्हेन वी सी दैट थिंग्स एज फॉर आवर एंजॉयमेंट, ये सब मेरे लिए भोग है, then that same thing which is again come from Krishna, that becomes matter. But again when we see अरे कृष्णा ये मुझे दे रहे हैं, I'm thankful to Lord, and मुझे इसको भगवान की सेवा में यूज करना है, और इसको यूज करते करते मुझे कृष्णा भावना अमृत बनते बनते, कृष्णा भावना अमृत बनते बनते भगवान के पास जाना है। तो ये कॉन्शियसनेस में हम रहेंगे, so we are actually living in the spiritual world. Then there is no matter, it is all spirit. So and we have to see Krishna everywhere. हर चीज जो है भगवान से उत्पत्ति हुई है। So and still Krishna remains complete. Krishna doesn't become incomplete anytime. कृष्णा जैसे पॉपुलेशन, हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। अब प्रभुपाद कहते हैं कि दिस अर्थ कैन सस्टेन 100 टाइम्स मोर, जितने जीव है इसके 100 गुना और भी जीव बने तो एक प्रकृति उसको चला सकती है। क्यों? कृष्णा के द्वारा। बट हम लोग मंद बुद्धि, हम लोग सोचते रहे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होगा, ये होगा, बट वी नेवर, कभी हम ये नहीं सोचते कि मैं इसका शोषण कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, उसके वजह से आगे चल के रिसोर्सेज स्कैर्सिटी होगा। बट इफ यू एक्चुअली लिव ऑन द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ शास्त्रास, दिस अर्थ कैन सस्टेन 100 टाइम्स मोर पॉपुलेशन। क्योंकि भगवान है चलायमान, भगवान इज द वन हु इज, बट बिकॉज वी एक्सप्लॉइटिंग इट, ये सारे थियोरी आ रहे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रिसोर्सेज स्कैर्सिटी वगैरह। तो एक्चुअली हम जैसे मतलब जीव के वजह से पूरा अस्त व्यस्त है। अदरवाइज भगवान का जो भी क्रिएशन है, भगवान का जो भी भगवान कर रहे हैं, इट इज टोटली परफेक्ट, किसी को कुछ कमी नहीं होगी। ये कमी जो भी हो रही है वो हमारी वजह से। तो ये कह के मैं रुकता हूँ, और हरे कृष्णा, प्रणाम। और किसी को कोई ऐड प्लीज कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। तो वेरी नाइस क्लास, और बहुत अच्छे से बताया। और ये जो कैसे वो प्रभु हर चीज से
मतलब मतलब नेचर के साथ रह रहे हैं तो पेड़ से कुछ रह रहे हैं तो धन्यवाद करते हैं। तो ये एक्चुअली जो है हमारा कॉन्शियसनेस जो है उसको सही कर रहा है। एंड व्हाट यू सेड वाज रियली वेरी एप्ट, क्योंकि हम लोग मशीन के साथ रह के हम लोग भी मशीन की तरह हो गए। हमारी जो भावनाएं हैं मनुष्य के प्रति या किसी लिविंग बीइंग के प्रति, मनुष्य से जानवर हो, मनुष्य सब, हर किसी से वी आर बिकम टोटली कैलॉस। कोई लेना देना नहीं है, जस्ट सब कुछ मेरे लिए है। ये एक मेंटेलिटी हमारे में आ गया है, लेकिन वही नेचर में अगर रहेगा वही व्यक्ति, उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। वो विल थैंक लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, विल थैंक ईच एंड एवरी ट्री एंड लिविंग बीइंग्स ओवर देयर। तो ए वेरी नाइस पॉइंट, इसको सीरियसली सोचना चाहिए हम लोग। एंड जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रह सकें, हम लोग मशीन का कम उपयोग करें, इट विल बी वेरी नाइस। ये हमारे मेंटेलिटी पे, हमारे एटीट्यूड पे बहुत प्रभाव कर रहा है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास था। और प्रभु जी वो पॉइंट्स जो स्पेशली नेचर के साथ रहने वाली पॉइंट बहुत सही और प्रभु ऐप पॉइंट थी। जैसे अभी हम कुछ टाइम पहले जब डाकोर धाम गए थे तो वहां पे जैसे भगवान अवतरित, मतलब भगवान आए, तो उसमें जो लीला हमने सुनी और जो भी हमने, जैसे हम वृंदावन में देखते कैसे नेचर से लोग जुड़े होते हैं, तो भगवान को भी मतलब भगवान का हर चीज में, कण कण में भगवान दिखते हैं और आभार व्यक्त करने की अवसर मिलता है। जब हम वहां गए थे तो वहां पे जब जहाँ पे वो उस भक्त ने भगवान की मूर्ति को छुपाया था, वो नदी भी हमने देखी कि कैसे लोगों का मतलब व्यवसाय, जैसे कि सारे कपड़े धोने के लिए कितने साधारण लोग थे, उस सारे कपड़े वहां पे आके धोते थे, जैसे हम वृंदावन में भी देखते हैं। तो कितनी सरल जिंदगी है, वो आराम से अपना, मतलब नेचर ने सब कुछ उनको, भगवान ने सब कुछ नेचर के द्वारा उनको प्रोवाइड किया। उनको कोई आधुनिक सुख सुविधा नहीं है। और हम सोचते थे कि हम तो यहाँ पे, वो लोग अपने सारे कपड़े लेकर आए थे उस नदी में, वो लोग उस छोटी सी पॉन्ड में जहाँ पे भगवान की मूर्ति को उस भक्त ने छुपाया था, वहां पे आके वो लोग धोते थे। तो हम सोच रहे थे ये लोग यहाँ पे आके धो रहे हैं, और हम तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें घर पे रखनी पड़ती है इनके लिए, तो मतलब ये सारे कपड़े ले आएंगे और फिर धोएंगे, मतलब क्या ये नदी खराब नहीं होगी वगैरह। लेकिन इन लोगों की जिंदगी इतनी सादी और सरल है, तो मतलब भगवान पे अगर निर्भर रहते हैं तो भी कितना, मतलब भगवान दिखाते हैं कि इजी बन जाता है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमें तब दिखता है जब हम धाम यात्रा करते हैं, जब हमें भगवान मौका देते हैं। जैसे हम ठाकुर धाम गए थे, वहां पे देख के मतलब सब लोग एकदम ऐसे हो गए थे कि कितने नेचर से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो पॉइंट है प्रभु, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें जितना हो सके नेचर से जुड़े रहना चाहिए, उससे हमें बहुत सीखना मिलता है। और जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी कहा कि हम जैसे अगर उससे जितना ज्यादा जुड़ेंगे तो हमारे अंदर मशीनी इमोशंस नहीं होंगे, हमें रियल इमोशंस होंगी, और हर दूसरे जीव का भी दर्द हम समझ सकते हैं। और तो दिस वाज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। और बहुत अच्छा प्रभु जी ने पूछा कि जब आप लोग शहर में रहते हो और अचानक बारिश होती है, हाँ, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है? तो हमने बोला कि अरे हम लोग बहुत ये हो जाते हैं, अरे अभी काम पे जाना है, शू गिला हो जाएगा, भीग जाऊंगा। एंड ही सेड दैट सेम, जब बारिश होती है गांव में तो फार्मर बिकम सो हैप्पी, वो लोग नाचने लगते हैं, मतलब बारिश हुई है, एंड दे स्टार्ट थैंकिंग गॉड। मतलब बारिश इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सिटी में हमको उसका महत्व नहीं पता। हम हर चीज हमारा सुपरमार्केट से आ रहा है, बट वही फार्मर जब बारिश आ जाता है इतना खुश होता है, इतना आनंदित होता है। तो इस तरह के फर्क वो हमको बता रहे थे। हरे कृष्णा। प्रणव नाम।
प्रभु जी मतलब सुपरमार्केट में जो चीजें मिल रही है वो फार्मर ही प्रोवाइड कर रहा है ना, जो भी वो अनाज उगा रहा है, तो उसके लिए तो वो नाचने का ही अवसर है प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेरी ट्रू माता जी। बट क्या होता है, बिकॉज ये जैसे एक बार बच्चे को पूछा था हम लोग दामोदर, इसमें दामोदर आरती कर रहे थे कि दूध कहाँ से आता है, दूध कौन देता है, तो उसने बोला ये सुपरमार्केट उसको नहीं पता था दूध गाय से आती है तो बिकॉज ही डजंट नो, उसको लगता है सारा सुपरमार्केट में खाली कार्ड कार्ड स्वाइप करो, वो आपका जो ट्रॉली रहता है ना उसमें भरते जाओ, लेकिन आ कहा रहा है ओनली व्हेन ही विल बी एक्सपोज, उसको जब बताया जाएगा बाबा इधर से सब होता है और फिर इधर आता है इतना मेहनत से, देन ही विल रियलाइज तो सिटी, बट नथिंग अगेंस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि अभी ये जो सिटी लाइफ कभी भी खत्म नहीं हो सकती, इट विल बी, बट हम जैसे जिनको एक मौका है, जो हम लोग वैदिक काम को एक्सपोजर मिला है, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट, और जितना हो सके हमको भी लोगों को इसका मतलब महत्व बताते जाना है और हमको भी इसका एडवांटेज लेना है, जस्ट दैट। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी इसीलिए प्रभुपाद ने धाम यात्राएं रखी ना भक्तों के लिए, ताकि वो मतलब बाहर आ सके सिटी लाइफ से, और धाम यात्रा करते करते उनको नेचर से वो जितना जुड़ाव होगा तो सरलता की पहचान होगी और भक्ति के लिए वो इजी होगा, है ना प्रभु जी। एंड द एटमॉस्फेयर इज सो सात्विक, मतलब आप गांव में जाके देखिए कोई भी डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस किसी का नहीं रहता। आप मतलब वो लोग इतने काम में इतना रहते हैं कि उनको इतना चीज नहीं आती है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सारा सिटी का वर्ड्स है देन है हमारे। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि ये सिटी लाइफ जो है ये हमेशा नहीं रहने वाला है, बिकॉज आगे जो चल के डिस्ट्रक्शन है, जैसे भागवतम में दिया हुआ है कि कलयुग के आगे आगे क्या होने वाला है, तो दिस इज ऑल गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। और ये नेचर अभी जो है वही एक समय है कि हम लोग इसके साथ बिता सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ये नेचर भी जो है ये खराब होते जाएगा, न पेड़ रहेंगे, न खेती रहेगी, न कुछ रहेगा, एंड दैट्स व्हाई पीपल विल बिकम कैनिबल्स, वो एक दूसरे को मार के खाएंगे। तो जस्ट इमेजिन ये जो सिटी लाइफ है ये टेम्पररी, ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, तो इसके लिए हम लोग जितने जल्द से जल्द हम लोग जो है इस कॉन्शियसनेस जो है हमारा चेंज कर दें हम लोग। जरूरी नहीं कि हम लोग जंगल में जाके रहें, लेकिन एटलीस्ट इफ वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड, हमारा कॉन्शियसनेस, तो उतना जल्दी हम भगवान के पास जाने के लिए हम लोग के लिए आसानी रहेगा। और इस कलयुग में हम लोग और यहाँ तक आ गए हैं, अभी तक हम लोग सतयुग से और आगे नहीं जाएंगे हम लोग, तो वी शुड मेक एन एफर्ट फॉर दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैनिबल्स प्रभु जी अभी भी देखे देखे तो लक्षण अभी दिख रहे हैं ना, जैसे कि कुछ कुछ देश के लोग, जैसे अगर हम चाइना ले लें तो चाइना में तो कभी भी देखते हैं कि वो तो हर प्राणी को और मनुष्य को भी उसने चढ़ा, तो कैनिबल्स ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो उनके तरफ से तो शुरू हो गया ना कि वो लोग मनुष्य को भी काट के खाते हैं। तो Yeah, why only China? Even India में, if you go interiors in east, मैं जब नोएडा में था तो वहाँ पे एक ये था, मोची था, वो उस गांव से था, तो वो एक बार बता, मैं इसके पास ऐसे ही बैठा था, अपना कुछ चप्पल या जूता ठीक करा रहा था, तो मैं तो सुन के शॉक हो गया उसका, मैं जो स्टोरी सुना शुरू किया, बोलता एक बार वो गाँव गया था, वहाँ पे वो जाता नहीं है, तो वहाँ पे उसको तो बोलते स्पेशल डिश, बोलते आज तुम्हारे स्पेशल डिश बनाएंगे, तो वो खुश हो गया। और वो जब एक्चुअली खाने के लिए बैठा तो देयर वर लिम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाथ था और कुछ कुछ था, तो वो तो एकदम डर गया, एकदम इंसान उठ के भागा वहां से उसको, और वो भी इंसल्ट था, तो लोग उसको मारने के लिए दौड़ कि हम लोग इसके लिए स्पेशल डिश बनाया, ये खा नहीं रहा है एंड इज रनिंग अवे, तो पीपल मतलब जो गांव के लोग जो है उसको जान से मारने के लिए कि ये लायक नहीं है करके।
तो आई वाज शॉक्ड, मतलब इंडिया में भी ऐसा होता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग, मतलब अभी धीरे-धीरे कलयुग के प्रभाव से बढ़ रहा है, बट लेकिन आगे ऐसा हो जाएगा कि जो अभी वेजिटेरियन बचे वो कोई नहीं बचेगा। एवरीबॉडी, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग विल बी सर्वाइविंग, क्योंकि वेजिटेशन है नहीं, फ्रूट नहीं है, फल नहीं है, सब्जी नहीं है, तो फिर उनको जिंदा तो रहना है। तो दैट विल बी द ओनली मीडियम मीट। जानवर भी नहीं बचेंगे तो फिर वही आदमी का फिर वो मार-मार के दूसरे को खाएगा। दूर क्यों जाए, हम लोग अभी भी देखते हैं चाइना में जो स्पेशल एक डिश है, दैट इज़ द फीटस ऑफ अ वुमन। छोटे-छोटे जो फीटस जो अबॉर्शन हो गया है, उसको मैंने उसका फ़ोटो देखा है लिटरली, उसको छोटे-छोटे क्या बोलते हैं जार्स में उसको काँच में भर के रखा है उसको। तो इट्स सो हॉरिबल। तो हम लोग बढ़ रहे हैं उस दिशा में। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग यहाँ तक आए हैं अभी, भगवान की भक्ति में आए हैं, तो बस अब सीरियस होना है हम लोगों को। वी शुड टेक इट सीरियसली। अब मुझे आगे नहीं जाना, बस भगवान आप मुझे यहाँ से निकालो, बहुत हो गया। ये सिंसियरली जब प्रे करेंगे हम लोग, देन वी विल गेट आउट ऑफ दिस साइकिल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया, वेरी शॉकिंग ऑल्सो कि ऐसे भी लोग अभी इंडिया में भी। और हमने किसी से सुना था कि ये लोग बोलते हैं कि अब चाइनीज या जो भी ये लोग खाते हैं ह्यूमन का मतलब ह्यूमन मांस या जो भी मतलब क्यों खाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये बहुत टेस्टी होता है। मतलब लोगों की चेतना इतनी गिर गई है, तो इसीलिए जैसे आपने बताया कि हमें अच्छा है कि हम भक्ति करें और ये सब ऐसी बेकार चेतना से दूर रहें। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण।